Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss the exercise of Unit 2, which is patriotism. Yesterday we discussed the translation and explanation of Unit 2. I have sent recording on the YouTube channel. Hopefully you have seen my recording. تو آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکسرسائز آف یونٹ 2. ٹھیک ہے، اس کا ایکسرسائز کر لیں گے. اگر کسی بچے نے کل میری ریکارڈنگ جو تھی، ٹھیک ہے، یونٹ 2 کی ایکسپلینیشن میں، تو وہ اگر کسی بچے نے نہیں دیکھا تو وہ آج ضرور اس کو پہلے دیکھ لے، اس کے بعد جو ہے آپ ایکسرسائز کو پڑھ لے. ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں. شیئر کرنے کے بعد جو ہے ہم ایکسرسائز کو پراپر ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایکسرسائز ہیں، کوشچنس ہیں اس میں. ٹھیک ہے، کوشچنس دو قسم کے ہیں، جس طرح ہم نے فرسٹ یونٹ پڑھتے ہوئے کیا تھا. ون کیٹیگریز فرام دا باکسز. ٹھیک ہے، ہر یونٹ کے آخر میں جو ہر پیراگراف کے اینڈ پہ باکس بنا کے کوشچن پوچھے گئے ہوتے ہیں، 2 3 4 کوشچنس وہ پہلے کیے ہیں. یعنی اس یونٹ میں 3 کوشچنس تھی، وہ لکھے ہیں. اس کے بعد ایکسرسائز کے کوشچنس ہیں. دین وی ہیو سم سینٹینسز. ٹھیک ہے، تو سینٹینسز بنائے ہیں کچھ ورڈس کے. یہ سارا ریلیٹڈ ہے آپ کی کاپیز کے اوپر لکھنے کا کام. ٹھیک ہے، تو وہ میں نے ذرا کیا ہوا ہے. باقی جو ہے بک ایکٹیویٹی ہے وہ فی الحال کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح ہم نے فرسٹ یونٹ میں بھی چھوڑ دیا ہے. وہ جب آپ بکس پراپر بکس لے کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو بکس کے اوپر میں وہ ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو کروا دوں گا. ٹھیک ہے، تو سٹار لے لیتے ہیں. فرسٹ کوشچن ہماری، who offers sacrifice for the country. ٹھیک ہے، تو فرسٹ کوشچن ہے کون اپنے ملک کے لیے جان دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، قربانی دے دیتا ہے. تو ہے a patriot offers sacrifice for the country when the need arises. تو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ایک محب وطن جو ہوتا ہے وہ وطن کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. It is considered a commendable quality. یعنی حب الوطنی کا جو جذبہ ہے یہ ایک قابل تعریف جذبہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 2 ہے who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. ٹھیک ہے، کس نے مسلمانوں کو ابھارا، برصغیر کے مسلمانوں کو ابھارا کہ وہ اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل کر سکے. تو آنسر ہے بچے قائد اعظم محمد علی جناح led the Muslims of the subcontinent in their struggle for the separate homeland. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو جو ہیں اس کوشش کے لیے ابھارا کہ وہ برصغیر کے مسلمان جو تھے وہ اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل کر سکے. He wanted to protect the values, cultures and traditions of Muslims. تو ان کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اقدار، ان کی ثقافت، ان کے رسم و رواج، ان کے طور طریقے جو ہیں وہ برقرار رکھی جا سکے اور اس کے مطابق مسلمان جو ہے زندگی گزار سکے. یہ ان کا ایم تھا، یہ ان کا مقصد تھا. ٹھیک ہے، then we have the third question which is what is the highest military award of Pakistan. ٹھیک ہے، پاکستان کا سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز جو ہے وہ کیا ہے؟ تو the highest military award of Pakistan is نشان حیدر. ٹھیک ہے، پاکستان کا سب سے اعلیٰ اعزاز نشان حیدر ہے. It is given to great patriots who lay down their life for the country. تو یہ ان عظیم محبان وطن کو دیا جاتا ہے جو وطن کی کے لیے اپنی جان قربان کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 کوشچنس تھے. تو یہ باکسز کے کوشچن سے ہیں. جب آپ بک کسی بچے کے پاس ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں بک میں سے کہ وہاں ہر پیراگراف کے اینڈ پہ، یعنی اس کے 4 پیراگراف ہے، 3 پیراگراف سے میں وہ پوچھ لیا ہے اور انہوں نے کوشچن پوچھا ہے باکس کے اندر. تو وہ کوشچنس تھے. اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کے کوشچن پہ. تو فرسٹ ایکسرسائز کی کوشچن ہے ہاؤ ول یو ایلابریٹ قائد اعظم محمد علی جناح کوٹ. ٹھیک ہے، یعنی قائد اعظم کی جو کہاوت ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے، اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گے. ایلابریٹ کا مطلب ہے ایکسپلین، وضاحت کرنا.
क्या है वो कोटेशन? वो है वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म व्हिच गैल्वनाइजेस ऑल इनटू यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। तो इसको यानी वो कहता है कि हमें पेट्रियटिज्म का एक एक सेंस है, जो जज्बा है, जो तासुर है, वो लोगों को देना चाहिए ताकि वो एक मजबूत उनको एक मजबूत और एक मुत्तहिद कौम बनने पे उभारा जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसकी एक्सप्लेनेशन यानी इफ वी डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, जब हम हुब्बुल वतनी का वो करते हैं, लोगों को तासुर दे देते हैं, वी शैल नॉट फॉल प्रे टू दिस यूनिटी एंड दिस हार्मनी, तो हम जो है मुत्तहिद रहते हैं और माशरे के अंदर बिगाड़ की तरफ नहीं जा सकते, डिस हार्मनी क्रिएट नहीं होता। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म कीप्स अस यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, तो जो जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है वो हमें मुत्तहिद और मजबूत बनाता है। Then we have the second question which is how will you define patriotism? ठीक है, यानी आप हुब्बुल वतनी को कैसे देखते हैं, इसका मतलब ये है। तो आंसर इज पेट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। ठीक है, तो हुब्बुल वतनी का मतलब अपने वतन से प्यार और एक दिली लगाव का नाम है। ठीक है, पेट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ and courage to safeguard the interests of the country and nation। तो हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो हमें हिम्मत देता है और हौसला देता है कि हम मुल्क के इक़दार जो है इनको बचाने की कोशिश कर सके। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट। ठीक है, एक एक मुहिब वतन की खुसूसियात क्या होती है, ठीक है, खूबियाँ क्या होती है। तो द क्वालिटीज ऑफ पेट्रियटिज्म आर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये क्या है, अ पेट्रियट लव्स हिज कंट्री। पहली बात तो ये है वो अपने वतन से प्यार करता है। दूसरी बात, ही इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस, तो वो जब भी जरूरत पड़ती है अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। He works hard for the progress of the country, वो मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करता है। He fights against the enemy of the country, वो मुल्क दुश्मन लोग जो होते हैं इनके खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये बातें, ये तीन चार एक मुहिब वतन की क्वालिटीज। ठीक है, तो ये अ जो है ये अ आप कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये आप लिखते हुए कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, कॉपी पे। देन हम मूव करते हैं फोर्थ पे। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री। ठीक है, यानी एक एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आप अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं। तो वो है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, यानी सबसे अहम जिम्मेदारी ड्यूटी इज लॉयल्टी टू इट, तो इससे वफा, वतन की मिट्टी से वफा करनी चाहिए, ये सबसे पहली जिम्मेदारी है। आई शुड बी विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम ऑफ माई कंट्री, तो मैं हर वक्त तैयार होना चाहिए बंदे को कि वो अपने वतन की खुशहाली और आज़ादी के लिए अपनी जान दे सके। आई शुड वर्क, मुझे खूब मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, वतन की तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए। आई शुड ओबे ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ, और गवर्नमेंट की तरफ से जो हिदायत हमें मिलते हैं तो उनको कानून के दायरे में रहते हुए मानना चाहिए। तो ये एक एक शहरी की जिम्मेदारियां होती हैं। 5 है व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। ठीक है, कौन सी चीज है जो हमें बाहर के हमलों से बचाए रखती है। तो द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। ठीक है, जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है ये हमें तैयार रखता है कि हम बाहर से जो भी मुल्क के लिए हमला हो जाए उसकी दिफा कर सके। पेट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। तो हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो वतन को बचाने के लिए हर तरह से कोशिश करने पे हमें आमादा करता है। ठीक है,
تو یہ क्वेश्चंस थी एक्सरसाइज की। अब उसी के अंदर कुछ वर्ड्स दे के सेंटेंसेस बनाने के लिए कहा गया है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है सेक्रीफाइस। मेजर अजीज भट्टी सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। मेजर अजीज भट्टी जो है उसने वतन की तरक्की के लिए, वतन की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। ठीक है। commendable patriotism is considered a commendable quality। हुब्बुल वतनी जो है ये एक काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है। प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, वी शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। हमें मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। इन्वेजन हमला, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। तो हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो हमें चौकस रखता है, तैयार रखता है कि हम बाहर के हमलों की दिफा कर सकें। मदरलैंड, आई लव माई मदरलैंड। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, अली इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉय। नेशनलिज्म, द मुस्लिम्स बिलीव इन द इस्लामिक ब्रदरहुड। ठीक है, मुसलमान जो है वो इस्लामी भाईचारे पे यकीन रखते हैं, ना कि कौम परस्ती पे। नेशनलिज्म है कौम परस्ती। तो यहाँ तक बात थी इस सेकंड यूनिट की एक्सरसाइज की, जिसके हमने क्वेश्चंस, बॉक्सेस के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, देन कुछ सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं। ये मैं आप लोगों से इसका पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो पीडीएफ से आप देखते हुए जो है अपनी कॉपीज पे इसको उतार देंगे, कॉपीज पे प्रॉपर आप लिख भी लेंगे, और यहाँ से एक बार आप सुन के उस चीज़ को नोट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ भी मैं बता देता हूँ आपको, मैं डायरी भेज भी देता हूँ। डायरी आप लोगों की है कि कल हमने जब यूनिट करके मैंने कहा था फर्स्ट टू पैराग्राफ्स के एक्सरसाइजेस, तो इससे नीचे 3 पैराग्राफ और है छोटे छोटे से। इन 3 पैराग्राफ की वोकैबुलरी प्लस मीनिंग्स पहले मुकम्मल कर ले, इसके बाद फिर हम कल जो है इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।